कौन सी फिल्म? धुरंधर. The film that has Ranveer Ranveer Singh, Singh. Akshay Khanna, Yes. Madhavan. Madhavan sir. I was, you can see the fumble. Yeah. I was amazed. I was like, okay, take it. Okay, yes. There's no question about it. Yeah. And I'm so happy if you see the song in the Mm. film. I don't know how many people know this. I'm a 23-year-old. I know. So when I think 2 years back when I met you, I was 21. Yes. So I was still, I have been trolled for my age too. People have questioned and it's okay. Like there was a time when मुझे खुद पे ही सवाल हो गया था कि मैं सच में, because I also see myself in the mirror. I know I don't look like a 23-year-old. So मुझे खुद कभी-कभी लगता था कि यार, am I 23? So it will take time. It is still changing in that process, but yes, I think that's there. मुझे उस चीज़ का नर्वसनेस से ज़्यादा वो एक्साइटमेंट था. सिर्फ बच्चे को नहीं होता वैसे कि I want to see him in person. I am going to share the same screen as this person. I was so excited. He sir was gifting this song to Kapil sir. मतलब उन्होंने एक रुपए भी नहीं लिया इस गाने के, which is such a beautiful thing. तो वो चीज़ वो मैं कभी मैंने उन्हें भी कहा है कि मैं वो चीज़ कभी ज़िंदगी में नहीं भूलूंगी. And I have so much love for her and respect for her. And You got emotional. I think you need a tissue. Sorry. Tissue हुआ यहाँ पे. मैं ऐसे बहुत ही दूर रहना चाहती हूँ रोने धोने से, but yeah, she has been in my life at a point where I needed someone the most, and knowingly unknowingly she was there, and I will always be grateful for that. मैंने उन्हें हमेशा कहा है कि आपको एक आँच आएगी अंकिता जी, I don't know about the world, I'll be always there. So yeah, as I promised, I'll always be there. So your bond going strong with Ishana. She's always been a good friend. I think only in the show she was not nice to me. After the show, I think we have shared a Good bond. good bond. Because And we she keep has supporting grown you. so much as a performer, as an artist. Hi Aisha, how have Hi. you been? I've been fantastic. I've been exhausted. I've been tired and overwhelmed, grateful. A mix of lot of feelings because promotions चल रहे हैं, फिल्म आ रही है, हाँ. बहुत कुछ चल रहा है, काम चल रहा है. So yeah. But how is the promotions going? You know, किस को प्यार करूँ part 2. How is that going? It is going amazing and I think क्योंकि हमने इतना सारा टाइम स्पेंड किया है शूट के दौरान भी और सब अब इतने अच्छे दोस्त बन गए हैं कि जब एवरी टाइम वी नो कि अच्छा परसों मिलना है इस चीज़ के लिए तो वी प्लान ऑन ग्रुप कि अच्छा ये करेंगे, ये रील्स बनाएंगे, अच्छा ये पहनेंगे, ऐसे करेंगे. सो आई थिंक वही एक फ़ायदा होता है आउटडोर शूट्स का. जब आप आउटडोर शूट करते हैं तो आप आपस में इतने ज़्यादा घुल मिल जाते हैं कि आप दोस्त बन जाते हैं. So You, Manjot and Parul have been very close, I think. Yeah. इन सारे group से I see. Tridha actually because वो ट्रैवल करती रहती हैं तो वो अभी सिटी में है नहीं तो हम उनसे इतना मिल नहीं पाते. एंड वरीना का भी आई थिंक सेम सीन है. सो हाँ, हम तीनों मिल लेते हैं. But what has been the biggest learning from किस को प्यार करूँ तो? Oh yeah. Wow. Biggest learning from किस को प्यार करूँ would be, I think you should. This is something I have always believed in, but I think ये one of the few times था जब वो practice में आया, is that you just focus on your work and let things be. हम कभी-कभी बहुत ज़्यादा conscious हो जाते हैं हर चीज़ के बारे में और काम को लेकर कि ऐसे करना है, वैसे करना है और ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे. But things are not in your control all the time. So when you just let things be and you breathe and do your thing, everything falls in place. Right, absolutely. But what made it this project for you is different कि नहीं ये करना चाहिए मुझे, despite you getting quite lots of work. I remember. No, I don't know कौन ये work दे रहा है, but हिंदी में तो it's not like people are offering me 10 films every month and I have a choice कि अच्छा ये वाला नहीं ये वाला करूँगी. That is the truth. आपके पास इतने choices नहीं होते हैं. And but the fact actually is कि अगर मेरे पास choice होता बहुत सारे ऑप्शंस होते तो भी मैं किस को प्यार करूँ टू करती. Because it is we have seen the first film and it's been such a big hit and people have loved the film, so who would not want to be a part of. The genre we were loved into, the genre was full comedy. Yes, exactly. And Kapil Sharma, matlab, who would not want to share screen with him? So I think even if I had the choice, I would love to do. But yeah, right now it wasn't like I had 10 films in hand and मैं choose कर सकती हूँ कि मुझे ये script करनी है ये नहीं. So, but you know that now that Rafu has a different fan base for you. You know, I personally was a very big fan of that show. You know, and जब वो खत्म हुआ तो even I was very emotional. Why it's getting close? I mean, क्यों खत्म हो रहा है? तो वो पता है ना आपको, the kind of fans are loving
उनका ये भी निक्की कहना है कि को- पार्ट 2 आना चाहिए यस जल्दी निक्की से को एक्चुअली इतना स्पेशली मेरे कैरेक्टर को एक्चुअली हर कैरेक्टर को हर कैरेक्टर की जो भूमिका थी उस शो में जल्द। जी उसे उस पर्टिकुलर भूमिका के लिए इतना प्यार मिला है बी इट मी फॉर निकी और बी इट करण फॉर ईशान हमें इतना प्यार मिला है इनफैक्ट चिराग ऑल्सो उन्होंने अक्षय का कैरेक्टर प्ले किया था और जैसा उनका कैरेक्टर था उस हिसाब से उन्हें उतनी नफरत भी मिल रही थी सो आई थिंक that's the best thing. I love to share this one incident when we were shooting for किस किस को प्यार करूं and हम भोपाल में थे और हम शूट कर रहे थे जी and एक सीक्वेंस था जहाँ मेरे हाथ में मेहंदी लगानी थी हाँ जी सो मेहंदी की जो आर्टिस्ट थी वो आई वैनिटी में एंड मैं बस अपना कुछ कर रही थी वो हाथ में मेहंदी लगा रही थी एंड आउट ऑफ नोवेयर शी गोज लाइक कि आप बात क्यों नहीं कर रहे तो मैंने कहा सो सॉरी मैं बस अपने फ़ोन पे थी इसलिए नहीं बस निक्की कितना बात करती है तो आई वाज लाइक हाँ पर वो मैं नहीं हूँ वो इट्स जस्ट अ कैरेक्टर दैट आई वाज प्लेइंग आई एम फन इन पर्सन बट मैं हर वक्त निक्की की तरह खुश और एक्साइटेड नहीं रहती सो मुझे लगता है इट वाज वन ऑफ द फ्यू incidents where I felt like that wow I have really touched people as the character and जब निक्की गलत decisions लेती थी तो लोग उससे गुस्सा होते थे जब सही कर रही थी तो लोग for a new show on YouTube to have an average view of 6 million is I think great and fantastic so I'm very grateful yeah so that has the impact आपके लुक का आपके आप जो शादी से पहले साड़ी शादी के बाद पहन रही थी शादी के बाद साड़ी पहन रही थी वो सबका लुक इतना क्रिएट हुआ है और लेजिट लोगों ने बात करा है उसके ऊपर तो आपको समझ आ रहा होगा कि कितना प्यार मिला है बहुत और वो प्यार हर तरीके से मुझ तक पहुंचा है और हर फॉर्म में पहुंचा है बीट व्हेन आई गो फॉर इवेंट्स बीट एनीवेयर आई रिमेंबर जब रफू में शादी का सीक्वेंस चल रहा था उसी टाइम पे मैं शायद आजियो के किसी इवेंट पे गई हुई थी बैंड्रा एंड समबडी केम टू मी एंड शी वाज लाइक कि यू नो आप कौन सा वाला लहंगा पहनेंगी वो जो आपके मायके से आया है या वो जो ससुराल से आया आई वाज लाइक फॉर समवन टू आस्क मी दिस इन पर्सन मतलब उन्होंने उस शो को कितने गहराई से देखा होगा आई एम रियली ब्लेस्ड फॉर दैट शो Absolutely. Yeah. But you know that people love you, you know. But with love often comes, you know, कभी कभार एक criticism आता है, pressure आता है, expectations आता है. How do you deal with that when you know louds around become noisy कि appease चाहिए मुझे? How do you deal that situation? I think कभी कभी नहीं आता है पूरा टाइम आता रहता है जिनके पास टाइम नहीं होता है वो फिर यही कर रहे होते हैं और क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है तो वो पूरा टाइम यही कर रहे होते हैं So I think earlier it used to actually affect me a lot. I would be lying if I say कि अभी भी मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता. But I would say I'm comparatively stronger और काफ़ी thick skin हो गया है. मतलब it's you know that this person cannot say this अगर वो सामने होता. It's only because you know that आप कभी पकड़े नहीं जाओगे और आप you know आप you know face आप just एक account हो जिसपे शायद DP भी नहीं होती है और आपको जो बोलना है बोलो बिकॉज आई थिंक उसके अलावा हेट और कहीं और मिल ही नहीं रहा है इट्स ओनली सोशल मीडिया सो या आई वाज सेइंग इट्स सैड कि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी और हम इतना आगे बढ़ रहे हैं एज अ नेशन बट अभी तक हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हम ये जो अननोन फेसेस हैं इनको पकड़ सके या यू नो एक भी सबक सिखा दिया जाए ना किसी एक को भी तो आई थिंक बहुत ही कम हो जाएगा ये सब होना एंड इट्स नॉट लाइक मुझे शुरू में लगता था शायद ओके बिकॉज यू फील दैट द वर्ल्ड इज अबाउट यू तो मुझे ऐसा लगता था अच्छा मुझे ही हेट मिल रहा है मुझे ही लोग ये कह रहे हैं बट आप कोई भी आप किसी का भी अकाउंट खोल लीजिए किसी भी एक्ट्रेस का स्पेशली आप अकाउंट खोल लीजिए फॉर दैट फैक्ट इफ यू सी अर्जुन कपूर आई हैव सीन वेरी रिसेंटली इट हैज बिकम अ ट्रेंड वेयर पीपल आर जस्ट ट्रोलिंग हिम फॉर anything and everything and I don't know him personally but I'm sure he has worked hard to be where he is and आपको कोई हक नहीं बनता कि आप किसी को भी कुछ भी बोले and ये cool बनाना इन चीज़ों को और इन चीज़ों को ट्रेंड बनाना and फिर ये वही लोग हैं कि जब you know कोई ऐसा इंसान कोई भी एक गलत कदम उठा ले ऐसी चीज़ों पे तो ये सारे फिर मेंटल पीस और कैसे हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए के बारे में बात करते हैं सो आई थिंक दिस कैटेगरी ऑफ पीपल इज जस्ट useless and nonsense and we should not be bothered and rather look to the brighter side of the social media. True, absolutely. The way you handle it, I think you're the one of people जो lashes भी करती हैं. हाँ मैं तो रिप्लाई कर देती हूँ मुझे दिख जाता है ना अगर फ्री हूँ और मैंने देख लिया तो मैं प्रॉपर रिप्लाई देती हूँ और मतलब क्या बोल रहे हैं आप मतलब सोचो कुछ थोड़ी सी समझ रखो और फर्स्ट ऑफ ऑल समझ होती तो आप ये कर ही नहीं रहे होते and
मतलब मुझे बहुत ही नॉनसेंस लगता है, तो और मैं हूँ नहीं एक्चुअली, मुझे तो रोकना पड़ता है लोगों को कि मत बोलो, वरना मैं तो क्या क्या बोलूँ लोगों को, पर मैं शांत रहने की कोशिश करती हूँ कि चल ठीक है जाने दे। बट चलो, अब आई एम सीइंग यू, क्योंकि मैं आपसे 2 साल पहले भी मिली थी, तो देयर इज अ डिफरेंट पर्सनालिटी टुडे, यू नो। बट पहले मुझे याद है कभी कभार आपने कहा था कि यार कोई अगर ऐसा कह रहा है ना कि फ़र्क नहीं पड़ता है तो वो झूठ कह रहा है, फ़र्क पड़ता ज़रूर है, हमें राइट। हमें भी ख़राब फील होता है। तो इन दैट सिचुएशन अब आपने कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि आई डोंट केयर? आई थिंक मैं शायद, I don't know how many people know this. I'm a 23-year old. आई नो, आई नो। So when I think 2 years back when I met you, I was 21. Yes. So I was still, I have been trolled for my age too. People have questioned, and it's okay. Like this is something that I don't really get bothered about, क्योंकि ये मेरे साथ हो रहा है जब मैं 17 साल की थी तब से. Because suddenly puberty hit हुई, suddenly मैं लंबी हुई, suddenly body broad हुई, suddenly I was growing. So for people to accept, I would go for introductions, and when I used to tell my age कि अच्छा मैं 17 साल की हूँ, everybody would look at me कि अच्छा झूठ बोल रही है. Also because we always carry that idea कि अच्छा एक्ट्रेस है तो अपने उम्र के बारे में झूठी बोलती हैं. और मेरा पॉइंट ये है कि आप मुझे 20 का समझो, 25 का समझो, 30 का समझो, 35 का समझो, तो जब तक मेरे घर पैसे आ रहा है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो आप मुझे किसी भी एज का कंसिडर करो, आई डोंट genuinely don't care. There was a time when मुझे खुद पे ही सवाल हो गया था कि मैं सच में, because I also see myself in the mirror. I know I don't look like a 23-year-old. So मुझे खुद कभी कभी लगता था कि यार am I 23? And I remember when I was 17 I had this whole conversation with my mom कि यार सब मुझे बोलते हैं कि you know I don't look my age. Is there something? नहीं बेटा, 17 की ही हो, 17 साल पहले ही हुई थी तुम हमें. अब ऐसा ही है, अपने भाई को देख लो, आपके घर पे जो कजिन्स हैं उनको देख लो, सब ऐसे ही हैं. सो वी हैव, अब मतलब है खून ऐसा है, पठानी खून है, पठानी जीन्स हैं, तो लगते हैं ऐसे, क्या कर सकते हैं. योर क्वेश्चन वाज हाउ आई हैव Keep yourself motivated. motivated myself with all of this is, I would say I'm more, yeah, so I was talking about the age because now I'm more self-aware. I know more about myself. I know what I have in me to offer to people, and this I say about things that I do off camera as a human being, not what I do on a set or professionally. I know how I am in my house. I know how much my friends love me for who I am. So that all of that makes you feel secure about yourself. जब आपको पता होता है ना कि आप अच्छे इंसान हो, तो ज़्यादा बॉदर नहीं करती ये चीज़ें. But at that moment कभी भी सेल्फ डाउट हुआ? या अपनी फिर अपने साथ कुछ करने की कोशिश करी कि कुछ तो मैं ऐसा कर लूं जिससे मैं थोड़ी कम दिखूं या समथिंग लाइक हाँ, मुझे वेट को लेके काफ़ी शुरू में भी काफ़ी, बिकॉज आई वुड से, आई डोंट नो what is the right word for it, but I was not the right shape always for how they look for in a actress, in a heroine. We think of एक specific है, बहुत लोगों के दिमाग में है, and बहुत लोगों के दिमाग में नहीं भी है, touch wood. So I was always been told to, you know, lose weight constantly, and it is such a sad thing that till today every time I eat something I guilty eat. Like I always think that okay, this is going to add on my weight, okay, this is going to do this to my body, or I'm going to gain weight. तो वो है, एक sad चीज़ है. और that, yeah, so everybody keeps telling you that you're supposed to look a certain way. तो आप और सोशल मीडिया पे, because you're seeing everyone in a certain form, you feel like अच्छा सब सुंदर दिखते हैं, सब हेल्दी हैं, सब फिट है. तो I'm sure बहुत लोग ऐसे हैं जो मुझे भी देख के सोचते होंगे कि मैं बहुत ही हेल्दी हूँ, फिट हूँ, सिक्योर हूँ, बट ऐसा नहीं है. हम सबके अंदर इनसिक्योरिटीज होती है. And it's just that one thing that I had learned years ago. A friend had told me, you know, you should always talk to yourself like how you would talk to your loved one. So that really changed a lot of things for me. Like I would never tell my brother that he's ugly or he has gained weight or he needs to lose weight. But I would always tell that to myself. So true. I told this in the last interview also that I've been really harsh on myself. So it will take time. It is still changing in that process. But yes, I think that's there. क्योंकि भी आपने बोला कि एक टाइप हो जाता है जब एक्टर्स हो ना आप, तो एक टाइप का देखना होता है. डू यू थिंक स्टिल दैट गोज ऑन, दैट स्टिल यू हैव टू बी इन दैट शेप जहाँ पे एक्टर्स को एक यू नो कहा जाता है कि नहीं ये चीज़ तो होनी चाहिए एक्टर्स में इफ दे कम फॉर मूवीज और समथिंग लाइक दैट? आई थिंक बहुत लोगों के दिमाग में होता है ये, बहुत सारे लोग इस वे में सोचते हैं. एंड इट्स ऑलवेज लाइक व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज ऑलवेज द पीपल हु आर not
not the right people to tell you this. Like, I've never had a director tell me this. I've always had somebody in between, like a coordinator or some random person tell me this. So मुझे ऐसा लगता है कि for certain roles, of course, if I want someone to look like they are going in a school and also to look like they're a girlfriend to someone, like age gap दिखाना है एक ही film में, I know some certain people would not fit in it. Probably I would not fit in it. Probably मैं शायद 8वीं क्लास में जाने वाली लड़की ना दिखूं, मैं शायद गर्लफ्रेंड दिख सकती हूँ, but वो नहीं. So I think as far as that is concerned, I am fine with it. Like I would love to fit the part, but only if I can. मतलब ज़बरदस्ती अब कोई मुझे किसी चीज़ में fit नहीं करा सकता. So I'm aware of that. I don't have a problem with it. But when people tell you in general on a normal day, just randomly that I had a person who told me you need to change your nose, and I was like, what is that comment even? Like, मतलब मुझे मेरे पहली बात तो मुझे मेरी नाक से बहुत प्यार है, मुझे लगता है मेरी बहुत सुंदर नाक है, और तुम कौन हो ये बताने वाले कि तुम्हें नाक चेंज करने की जरूरत है. But these are those people who want you to, you know, pull down every time. Yeah, जिनके पास, मैं बोल रही हूँ ना, जिनके पास करने को कुछ नहीं होता है जिंदगी में, वो यही कर रहे होते हैं, क्योंकि वो फिर और कहाँ निकालेंगे, तो वो यही कर रहे होते हैं. I remember I'd gone for this one film का casting था, and the director had come, and this was a very famous director, and I was so excited for the meeting, and it was supposed to be a horror film, and हमारा हुआ, हमारी बात हुई, they asked me to audition then and there. I did that, and he was very happy. और मैं ऐसे बैठी हूँ, मैंने audition किया, I'm shaking hands, and he said, you know, ये हॉरर फिल्म है तो ठीक है, अदरवाइज आपको अपने दांत चेंज कराने पड़ते हैं. ना, I was like, क्या? Did he just say that? और मैं हंस रही थी उस वक्त, क्योंकि मैं इतनी खुश थी कि अच्छा वाओ, I've done an amazing job, मैंने बहुत बढ़िया सी ऑडिशन दी है, और मैं एकदम खुश हूँ, और सडनली ये कमेंट आया ना, I'm like, अच्छा ओके ठीक है. तो कभी कभी आपको होता है ना, सोचते हो मैं घर जाके देखूंगी अपने दांत की, जरूरत है क्या, सच कह रहे थे क्या, तो लगता है ऐसा कभी कभी. I love your post, you know, when you post the pictures जहाँ पे आप बहुत रेडी होके गई हैं, and then आप जब घर पे मेकअप उतार रहे थे, and then you are like, फोर्थ वाली पिक्चर भी देखना, am I looking good in that? I love those posts. That's the reality, right? मतलब हम, it's quite relatable. The thing is that it's relatable. Exactly. मतलब आप हमेशा ऐसा लगता है हमें कि हम सुंदर दिखते हैं all the time, but there's a before and after to it. Before I came here, I was in my pajamas. Yes. After I will go from here, I'm going to be in my pajamas. True. But at the age of 7, you started working. I started working when I was 17. At 17? Yeah, 7 was when I started acting. Acting, yeah. Okay, so you started at the age of you started acting at the age of 7. Right. Right. I really want to ask you, what was one moment that you decided me इस time ही मुझे काम करना start करना है? Was the offer came to you or something like that? So acting जो मैंने शुरू किया था, it was never with an idea of this is supposed to be my profession और कुछ भी ऐसा. मतलब मुझे बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था इस प्रोफेशन का. मेरे फैमिली में दूर दूर तक, और मैं ये झूठ नहीं बोल रही हूँ, दूर दूर तक कोई एक्टिंग से रिलेटेड नहीं है. तो बिल्कुल पता ही नहीं था कि अच्छा ऐसे आप पॉसिबल भी होता है, दैट यू नो यू हैव नो लिंक्स एंड यू कैन स्टिल बी एन एक्टर एंड ऑल दैट. तो कोई अंदाज़ा ही नहीं था. 11th 12th में भी आई रिमेंबर आई यूज्ड टू गो फॉर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स एंड दिस एंड दैट, एंड वन डे randomly, I think I had back then 2,000 followers or something on Instagram. I had received a message for the first time. This was when I was in 12th grade from an agency, and मतलब मुझे एजेंसी का भी कॉन्सेप्ट नहीं पता था कि ऐसा कुछ टैलेंट एजेंसी ऐसे नाम की चीज़ भी होती है. एंड दे कॉल्ड मी टू वर्सोवा, एंड उसके पहले मैं ज़िंदगी में कभी वर्सोवा नहीं आई थी. वी यूज्ड टू लिव इन नवी मुंबई. तो मैं और मेरे पापा साथ आए यहीं वर्सोवा में पहली बार ज़िंदगी में. आई रिमेंबर उस एड्रेस पे आराम नगर मछली मार लिखा था ना. ये कैसा एड्रेस है. एंड वाओ, नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट इट, इट्स सच अ circle of life, because I have a food cart in Versova now. Yes. So yeah. Bhap re bhap. From I'm personally a big fan of it. So from a place that from the time when I didn't know about this place to now having my own food cart, I think it's been a very very long journey. But I'd come with my father. हमने local ली थी, हम अंधेरी पहुँचे. हमने बस पकड़ी थी. I remember still 6 या 7 रुपए की AC बस थी. मेरे पापा ने मुझे दिखाई थी कि you know this is how it's going to be if you have to come back here again. And that's how, yeah, the agency I met, they were weird people, but
God bless them because they made me introduce this whole industry. And then I started giving auditions for junior artist roles. Worked as a junior artist for quite a few time, quite a long time, and then yeah. But was that a moment and decided कि नहीं मुझे एक्टिंग ही करनी है, मुझे कैमरा Yeah, के सामने I ही think रहना है? हाँ, जो मैंने पहला ऑडिशन दे दिया ना और मैं सेलेक्ट हो गई, तो वो मुझे उस चीज ने बहुत कॉन्फिडेंस दे दिया कि ओ मतलब मैं तो बनी हूँ स्टार बनने के लिए ना. वो ऑडिशन था एज अ जूनियर आर्टिस्ट और मुझे उस वक्त बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जूनियर आर्टिस्ट होता क्या है. मतलब मुझे जब आई रिमेम्बर इट वाज नहीं, इट वाज ये है मोहब्बतें, एंड आई वाज सपोज्ड टू प्ले अ कैरेक्टर ऑफ अ फैन. और मैं आई थिंक ये शूट था नहीं, व्हाट इज दैट प्लेस जहाँ पे बालाजी के सेट्स लगते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है अभी. नहीं, somewhere near Powai. I don't remember what is the place called. तो मैं वहाँ गई थी. I think Chandivali, right? studios. Chandivali. Yeah. So I had gone to Chandivali for the shoot, and I remember I had just, I was entering my room and I saw junior artist, and I told my mom also कि अच्छा ये junior artist लिखा है क्योंकि मैं 17 साल की हूँ. तो मुझे कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था कि अच्छा it is just clapping. और हाँ, एंड देन उन्होंने रैंडमली पूछा कि आप सब में से कौन स्टेज पे आना चाहेगा. आई वाज लाइक मैं एंड आई वेंट ऑन द स्टेज. 9 सेकंड या 10 सेकंड का वो स्क्रीन प्रेजेंस था. एंड हम रुके हुए थे, मतलब जब वो रिलीज होने वाला था हम पूरा फैमिली मतलब 4-5 दिन से वो सीरियल देखना शुरू कर चुके थे हम कि अच्छा अब आऊंगी. It was such a happy moment. When I talk about it now, yes. I feel like it was such a happy moment. I still have that clip on my phone. It was such a happy moment कि oh first time TV पे आ गए. But how are you in studies? You're good in studies? एक टाइम तक अच्छी थी. फिर मुझे एहसास होने लगा कि मैं अपने घर वालों के पैसे बहुत वेस्ट करूँगी अगर मैं इसे कंटिन्यू करूँगी. एंड आई एम सो ग्लैड आई हैड my parents support me throughout, because I told them, I remember when I failed in 12th in one subject, that is also a very long story. Maths? Accounts. Something related to maths. मेरा बहुत गड़बड़ है. मेरा maths इतना गंदा है. So same. Oh God, I can relate. बहुत गंदा है. मतलब मुझे 8 - 7 भी कैलकुलेटर पे करना पड़ता है. इतना गंदा है. मतलब वो ना वो 10 - 8, तो फिर मैं 1 को कट करूंगी, उसको 0 लिखूंगी, फिर 0 को कट करके 10 करूंगी, फिर 10 - 8 करूंगी. तो उस लेवल का बुरा है मेरा मैथ्स. सो आई फेल्ड. एंड मैं जिस दिन मेरे अकाउंट्स के एग्जाम थे, उस दिन आई वाज सपोज्ड टू बी शूटिंग फॉर अ टी सीरीज सॉन्ग. दैट वाज माय फर्स्ट सॉन्ग फॉर टी सीरीज. इट वाज Asim's and Jacqueline's song, मेरे अंगने में या तेरे अंगने में. And I was supposed to do the second lead, and they replaced me and they didn't even tell me. At last moment? एक रात पहले मैंने कॉल किया. So 5 फरवरी को आई थिंक उसका शूट था, और 5 फरवरी if I'm not wrong was my boards exam. And I remember there was this girl called Ash, जिसका भी बहुत recently मुझे मैसेज आया था, and I had called her and कि ना कल का कॉल टाइम क्या है. And she said, oh sorry, I forgot to tell you, you're replaced. और मेरी तो मतलब पैरों के नीचे से जमीन जो भी हो सकता था सब निकल गई कि क्या मतलब are you telling me I'm replaced and you didn't even tell me? And they're like yeah they wanted someone else. And I was like बहुत रोई हद से ज़्यादा रोई. And cut to I did a TCE song as a lead. Yes, so I think whatever happens for the good. Yeah. So little Aisha is proud of herself today? Very proud of herself. Also, I think अगर ये सारी चीज़ें थोड़ी easy आ जाती ना ज़िंदगी में तो इतना मुझे proud feel नहीं होता. But जितनी मुसीबतें और जितने अड़चने आई हैं ज़िंदगी में, I think now when I look back at it, I feel that good job. Yeah. Success comes with scars. Yeah. So it's okay. But you know, जब आप चीज़ें change करी थी, firstly I want to talk to you about the collab of the year with Honey Singh. I loved it. Oh, you're looking so crazy, so good at that. Yeah. So good. Very, very crazy. And your dance steps at the point. Thank God. मतलब मैं genuinely बहुत nervous थी. More than the fact that मतलब the fact that हम हनी सिंह के साथ गाना करने वाले थे, मुझे उस चीज़ का nervousness से ज़्यादा वो excitement था. सिर्फ बच्चे को नहीं होता वैसे कि I'm going to see him in person. I am going to share the same screen as this person. I was so excited. And मैंने किसी को भी नहीं बताया था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी नजर लगे. But I think it is वही होता ना, you feel like
life has completed full circle. Like you've heard his songs. Yeah. आपने उनको देखा है, आप बड़े हुए उन्हें देखते देखते. So I think it was such a moment for me. मतलब जब मैंने वो गाना देख लिया था, I was like, okay, ठीक है. तब भी नहीं बताया था आपने ना, आराम से बताया. आराम से कि भाई हो गया, मतलब वाह 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 वाह, very happy. है ना. But how was that shooting with the whole song? कपिल भी थे उसमें, आप Right. भी थे, और पारुल, श्रद्धा. पारुल भी थी, और सब थे, सारी ग्रुप थी, and हरी सर भी थे. So how was that? How is he as a person? How was he with you? How was everything? It was amazing यार. हम I think 3 दिन का शूट था हमारा. हमारे प्रोडक्शन हाउस ने हमें इतने प्यार से भेजा था दुबई शूट करने के लिए. So हम गए थे, हम इतने एक्साइटेड थे क्योंकि also हनी सर was gifting this song to कपिल सर. मतलब उन्होंने 1 रुपए भी नहीं लिया इस गाने के लिए, which is such a beautiful thing to know. बहुत कम लोग करते हैं आपके लिए from the same industry ऐसी चीज़ें. So yeah, we went and I met 2 of the most amazing people I know in my life right now, which were Elige and Manhal, जो मेरे makeup artist और hair stylist थे उस shoot पे. And I'm so happy I went on that shoot because there's such amazing people. Elige is a sweetheart. We exchanged so many things from Dubai to Bombay now. And then cut to, we shot, I think 2 days we shot with Kapil sir. हमने किया, second या third day हमारा हनी सर के साथ था. And he came on set, and to see him live, I think मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, मैं कुछ कर ही नहीं पाई. मैं सिर्फ ऑ में थी और मैं सिर्फ उन्हें देख रही थी कि क्या फील होता होगा ना to be a superstar. And you just walk in the room and you know everyone's looking at you, and you know everyone loves you for the work you have done, and you have literally changed the music scene of the whole industry. So you could feel that aura. So it was amazing. It was amazing to work with him. उसके बाद फिर मैं आपको जाट में भी देखा आपको मैंने, and then धुरंधर में भी हो आप, है ना. I really want to ask you, ऐसा फील होता है कभी कभी आयशा you have arrived या और बचा है कुछ? I think I am very happy that सब कुछ एक के बाद एक हो रहा है. But if you ask me if I am still satisfied and if I feel I have arrived, no. I feel there's more to me. I feel वो जो चीज़ जिसको करके मुझे लगेगा ना कि यार मैंने I've killed it, वो I think अभी बाकी है. वो होगा जब मुझे ऐसा लगेगा कि especially acting wise, when I feel I've had the opportunity to play a character जो मेरे skill को justify कर सके. Am I grateful for the work that I'm doing? I am more than grateful. I've not told this to anyone, but I'm part of Dhurandhar in a way. I've done a song for them, and it was what an environment to shoot in. And they were so well prepared and so on point. And Aditya Dhar sir especially, he's incredible. And you know, generally आप sets पे देखते हो कि directors का इतना involvement गानों में नहीं होता है क्योंकि choreographers हैं and सब है. But he was so involved in the process of the song, and Vijay Ganguly has choreographed the song. So it was you know, to work with such people. Jasmine has sung the song, Madhumanti ma'am has sung the song, and it was amazing. The feeling of being, you know, around such people, such good energy and such skilled people, I would say, जिनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं जिंदगी में. And like I remember Mukesh sir had just called me and he told कि you know there's this song and ये है and I want you to do it. And I was like क्या? Okay, कौन सी film? Dhurandhar. The film that has Ranveer Singh, Akshay Khanna, Madhavan, Sanjay Dutt, sorry, my bad. I was, you can see the fumble. I was amazed. I was like, okay, take it. Okay, yes, there's no question about it. And I'm so happy if you see the song in the film. And yeah, I and Crystal, both of us have performed in the song, and it's been a pleasure. It was that those 2 days were so good, so good. Like the whole energy of the set and the whole मजा आ गया था. मतलब पता था कि this is going to be a blockbuster. Yeah, it is. The reviews are amazing. Yes. Amazing. I'm going to watch the film today. Yeah, good luck. You're gonna love it. But Aisha, you know, जैसे आपने अभी कहा कि I'm not still satisfied, right? आपका वे क्या होता है? What's your process if you're gonna reach out to director or someone you want to work from? What's your process?
do you still go and give your interviews, or do you still give your look test or something like that? So what has been a way for me is always the other way around. Like किसी ने भी approach किया है तो काम मिला है. I don't know if I am at the position of calling a Karan Johar and saying कि मुझे ये film करनी है. Of course I'm not. So casting directors, yes. Whenever whoever I know want me to come and audition, I give as many as auditions as possible. I love the process of auditioning, and I also work on my craft in a way where I do workshops, and yeah, I think बहुत सारे auditions और look test और जो भी है जहाँ तक बात पहुँचे. look test generally आपका audition crack होने के बाद होता है, जब उनको लगता है आप उस role के लिए capable हो, तो वो आपको देखते हैं कि क्या आप उस look में भी fit हो रहे हो. So वो उसके बाद होता है. But जो भी मुझे बुलाए, and I'm saying this on camera, whoever thinks I am capable of anything, मैं कभी भी auditions देने से हिचकिचाती नहीं हूँ. I'm more than happy to come and audition. Please reject me, I don't mind, but please consider me. Like I love auditioning. The fact that आपने मुझे इस character के लिए consider किया ही मेरे लिए बहुत है, तो मैं खुशी-खुशी audition कर लेती हूँ. I think ये होना चाहिए जज्बा. True. But Aisha, you know, कभी ऐसा कोई काम किया है just to be relevant? I want to be relevant. I mean, I've always been relevant, so. You are till now. But sometimes कि ऐसा होता है कि नहीं, I want to do a work जहाँ पे लोग मुझे याद रखे, something like that. I think relevant and याद रखे, I would say are little two different things. Relevant is, I feel, किसी भी एक्टर को ज़रूरत नहीं है relevant होने की. सबका अपना समय आता है. And जब तक आप चल रहे हैं वो जो होता है ना कि आप अभी दिख रहे हैं फिर आप नहीं दिख रहे हैं. I think वो phase हर किसी की ज़िंदगी में आता है. And especially जब like people like me who are also present on social media, अब हमेशा दिख रहे होते हो कहीं ना कहीं. But people who are only doing acting and are only in films, उनके लिए ये word ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि you know if they are relevant or not. But I feel वो है, मतलब सब हर कोई हर समय तक relevant है. और especially actors जो होते हैं वो हमेशा relevant होते हैं क्योंकि उनका craft कभी भी out of fashion जा ही नहीं सकता. आज शायद आज उनके लिए कोई पर्टिकुलर काम ना हो जो उन पे सूट करा, बट कभी ना कभी ज़रूर होगा. सो दैट वे इट्स ऑलवेज देयर. एंड आई टच वुड, आई फील लाइक आई ट्राई डूइंग एवरीथिंग. एंड क्या मैंने ऐसा कुछ किया है कि लोग मुझे याद रखें? आई होप एवरीथिंग दैट आई डू उसे लोग याद रखें. सो आई थिंक दैट्स हाउ आई लाइक टू वर्क. वेल पोर्ट्रेड. बट यू नो, जैसे कि अभी आप हमेशा बोलती भी आई हैं पैपराजी को लेकर. अभी आप देख रही हैं कि आसपास क्या हो रहा है पैपराजी को लेकर, जिसमें जया बच्चन का भी कमेंट था कुछ पैपराजी को लेकर. व्हाट यू हैव टू से ऑन दैट? व्हाट्स योर टेक? As much as I feel it's a very sensitive topic for a lot of people, I have been always loved by the paparazzi. And मैं ये बात कहने से बिल्कुल भी नहीं झिझकूंगी कि जितना हाथ मेरा खुद का है, इफ़ यू मे कॉल रेलेवेंट होने में, उतना पैपराजीज़ का है. वो उनका आपको दिखाना और उनका आपको प्यार करना ही वन ऑफ द वेज होता है जिससे लोग आपको जानते हैं. अगर कल मैं किसी को देखती हूँ इंस्टाग्राम पे किसी भी पैप पेज पे, से मुझे उसकी पहचान होती है. कितने लोग होते हैं जिन्हें आपने कहीं नहीं देखा होता है, बट आप किसी भी पैप पेज पे देखते हैं तो आपको लगता है कि अच्छा ओके विरल भैया ने डाला है, अच्छा इंस्टेंट ने डाला है या फिल्मी क्या ने डाला है. एंड आई हैव ऑलवेज हैड अ लॉट ऑफ लव फॉर द पैपराजी. बट टू ऐड टू इट, कभी कभी येस बाउंड्रीज क्रॉस हो जाती हैं. एंड कभी कभी ऐसी चीज़ें मेरे साथ भी हुई है और मैंने कई बार उन चीज़ों को लेकर बात भी की है कि जहाँ बाउंड्रीज क्रॉस हो जाती हैं. बट इट इज़ सच अ वाइड आई वुड से डिस्कशन एंड टॉपिक, क्योंकि दे आर डूइंग दिस फॉर व्यूज़. ऑफ कोर्स उनको पता है कि अच्छा ठीक है, मैं कोई एक्टर चल रहा है, बैक शॉट डाल दिया, गेस हू डाल दिया, पीपल आर गोइंग टू वॉच इट. फलाना हुआ ढिमकाना हुआ, पीपल आर गोइंग टू वॉच इट. सो आई फील एट द एंड जो एक्चुअली फॉल्ट में है वो ऑडियंस है, क्योंकि आप देख रहे हो, आप देखोगे जब आप किसी एक्टर का डेथ होगा या वो हॉस्पिटल में होगा और वो वीडियो जब जाएगी, यू विल वॉच इट, यू विल नॉट स्किप इट. इज वाई दे आर पोस्टिंग इट, because they know you're going to watch it. So as audience especially, मुझे नहीं लगता हमें हक बनता है कि हम उस चीज़ को क्वेश्चन करें, क्योंकि हम ही इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं. आप देखना चाहते हो कि धर्मजी हॉस्पिटल में है या नहीं है, एंड you do feel, right, it is such a
such an insensitive thing to do जब as an audience to want to see such things, and as paparazzis I would say that it is such a thin line between doing your job and invading someone's privacy. मैं नहीं चाहूँगी कि अगर मेरे घर में कोई बीमार हो तो कोई कैमरा लेके मेरे मुंह पे खड़ा रहे और मुझे पूछे कि मैं कैसा फील कर रही हूँ, बट ये कंटेंट आप देखने वाले हो एज एन ऑडियंस. तो ये जो मीडिएटर को आप क्वेश्चन कर रहे हो, आप उस चीज़ के लिए क्या स्ट्रॉन्ग एक्शन ले रहे हो. सो कभी कभी येस आई फील पैपराजी अपने लाइंस क्रॉस कर देते हैं, बट I think we can do something else for it. We can have probably correct teaching for it. एक तरीका बताया जाए. जैसे मेरे साथ हुआ है, कितनी बार हुआ है कि वो लाइन क्रॉस हो जाती है. आप कहाँ किसी को कॉम्प्लीमेंट करते करते कहाँ छेड़ने लग जाते हो आपको पता ही नहीं होता है. आप आयशा जी आप कैसी हैं, इज़ फाइन. आयशा जी मैं आपको घर छोड़ दूँ, इज़ रॉन्ग, एंड दैट हैज़ हैपेंड विद मी. तो उस चीज़ की बाउंड्री हमें सिखाना बहुत ज़रूरी है. वो अगर हम क्लियर कर दें और उस चीज़ के लिए एक तरीका निकाल दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा. एंड आई थिंक जया जी इज़ नॉट रॉन्ग व्हेन शी हैज़ प्रॉब्लम विद इट, क्योंकि आई हैव सीन वीडियोस जहाँ पे आप सुन सकते हो ऑडियो में कि वो जया जी पे कमेंट कर रहे हैं. डू यू नो व्हाट शी हैज़ डन इन लाइफ? डू यू नो व्हाट पोजीशन शी होल्ड्स एज एन एक्टर, एज अ ह्यूमन बीइंग? हु आर यू टू मेक सच कमेंट्स? सो आई थिंक वो भीड़ में होता है ना कि एक मछली खराब होती है तो पूरा तालाब खराब हो जाता है. ये वो वाली बात है. वो जो एक मछली है ना उसे साफ करने की जरूरत है. इट्स नॉट लाइक ऑल ऑफ देम आर लाइक दैट. देयर आर अमेजिंग पैप्स इन आवर टीम्स. लाइक कितने सारे ऐसे हैं जो इतने अच्छे हैं, इतने सपोर्टिव हैं. आई सी समटाइम्स जब आप यू दे सी कि अच्छा कोई गलत एंगल से शूट करना चाह रहा है तो वो मना कर देते हैं कि रुक जा भाई क्या कर रहा है. सो इट्स अबाउट what you have as a person to offer in your profession. And they all are different people. सब अलग-अलग लोग सबको आप कैटेगराइज नहीं कर सकते. They are different people. कुछ लोग हैं खराब, मैं कह रही हूँ, बट सारे वैसे नहीं हैं. Right. And yeah, we do cross the line when we say कि उन्होंने क्या पहना है और क्या नहीं पहना है. If they had the choice, they would not be doing that. They would not be wearing what according to someone could be not glamorous or not presentable. तो सब अपना अपना कमा रहे हैं, सब अपना अपना खा रहे हैं. किसी के अपीयरेंस पे बोलना आई डोंट थिंक सो इज़ फेयर. अगर किसी के पास है तो बहुत अच्छा है, किसी के पास नहीं है तो उसे रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि आज जो आपके पास है वो कभी भी खो सकता है. So true, so true. Coming back to interview वाला part, yeah, what has been your biggest insecurities? Wow. मुझे ना बहुत लोग को नहीं पता ये, पर मैं हाइट में लंबी हूँ और कभी कभी वो मेरे अगेंस्ट हो जाता है. लाइक आई एम 5 feet 9 inches टॉल, एंड बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं कास्ट करते होते होते इसलिए नहीं हुई हूँ क्योंकि जो हीरो है वो हाइट में छोटा है एंड ही इज़ नॉट कंफर्टेबल विद अ टॉलर वुमेन. सो दैट इज़ वन थिंग दैट आई हैव बीन अ लिटिल, कभी कभी ऐसा लगता है कि यार थोड़ा सा शायद छोटी होती तो शायद और 1-2 फिल्में आ चुकी होती अभी तक. But apart from that, I am not really insecure about anything. Yeah. कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगी ही नहीं कैमरा पे. Sure. But yeah. I will respect that. But what has been your biggest blessing these days? Biggest blessing I think for me these days is that I get to come home and celebrate each and every happiness with my family. I think there's nothing more than that that I want. मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कुछ भी अच्छा हो बुरा हो और आपके पास घर आके एक फैमिली हो उस चीज़ को शेयर करने के लिए, एंड स्पेशली अ फैमिली दैट इज़ सो सपोर्टिव एंड दैट्स बिन विथ यू थ्रू आउट योर जर्नी, मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं घर आ सकती हूँ और दाल चावल पे बैठ के डिस्कस कर सकती हूँ कि आज प्रमोशन पे ये हुआ और इस दिन को प्रीमियर होने वाला है और ये होने वाला है वो होने वाला है. So I think yeah, that's my I got to know that हर दिन आपके घर पे कुछ अच्छा बनता है. हर दिन घर पे अच्छा बनता है. हर दिन घर पे सुबह एक मीटिंग होती है जहाँ पे इतनी सिली बातें डिस्कस होती है जिसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए. You cannot even imagine the kind of discussions that happen in my house every morning. But I think it's also one of the reasons why we are so connected and together, because हर सुबह हम डिस्कस करते हैं कि कल हमारे साथ क्या हुआ है और क्या है जो हमारे आसपास हो रहा है, एंड ऑल ऑफ अस नो अबाउट ईच अदर. इट्स नॉट लाइक किसी और से और कहीं और से पता चलेगा कि कल क्या हुआ था. तो सो हमें आपस में एक दूसरे का सब पता होता है, डिस्कशंस होते रहते हैं,
बकवास बात अब मतलब घर में कौन सा साबुन आया था कल और क्यों आया और किसने लाया भी डिस्कस होता है. तो आयशा तो स्टार है, तो स्टार जैसे बिहेव करती है घर में? बिल्कुल नहीं. घर पे दाल टिपिकल आयशा हो जाती है. नहीं, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है. किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं बाहर क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, उससे किसी को लेना देना नहीं होता. एंड स्पेशली माई मॉम इज, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन हर, शी इज़ वेरी, शी हैज़ नो स्ट्रेस टू गिव अबाउट एनीवन. उनको कोई लेना देना नहीं है कि कौन क्या है. उनको सिर्फ अपने घर से मतलब है, घर में क्या पक रहा है से मतलब है, और उनकी बहनें और भाई कैसे हैं उससे मतलब है, और अपने बच्चों से है, आई होप सो. तो उनकी उतनी ही ज़िंदगी है. तो शी इज़ वेरी अनफ्लैटर्ड अबाउट व्हाट आई एम डूइंग इन लाइफ. शी अप्रिशिएट्स एवरीथिंग, बट इट्स नॉट लाइक वो मुझे उस चीज़ को मेरे सर पे हावी होने देते हैं. बोथ माई पेरेंट्स एंड माई ब्रदर, आई थिंक इज़ वन ऑफ द रीजन्स वाई आई हैव स्टेड ग्राउंडेड एंड हम्बल, क्योंकि कोई सर पे चढ़ाने वाला ही. बट आपका और ब्रदर का बॉन्ड वो कैसा है? क्योंकि मैं देखती हूँ कहीं पे भी आप रहते हो ना, ही इज़ ऑलवेज देयर, ही इज़ ऑलवेज सीइंग यू, सब सेफ है कि नहीं आसपास, सब कुछ. लड़ाई होती है घर पे भाई बहनों की जैसे होती है? आज हुई है हमारी लड़ाई. नहीं होती है, आज हमारी थोड़ी सी बहस हुई है. बहुत ही इमेच्योर बातों पे होती है. मतलब आज हम बैडमिंटन खेलने गए थे और मुझे उसका शटल लगने वाला था कि लड़ाई थी कि तू मुझे मारना चाहता था. बस यही सब होता है. बाकी हमारे बीच बहुत एक्चुअली बहुत अंडरस्टैंडिंग है मेरे और मेरे भाई के बीच. मतलब वी आर लाइक दिस, लाइक, एंड इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स वाई मेरे पेरेंट्स बिल्कुल, मतलब उनको पता है कि ऐसा भी नहीं है कि एक बच्चे ने कुछ किया तो दूसरा बता देगा. उन्हें ही पता करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो एक दूसरे का किसी को कुछ नहीं बताने वाले. सो वी आर लाइक दैट. एंड या आई हैव सेड दिस quite a few times and I would say it again, that I am what I am because of my brother and my parents. I think without their support and without what they do for me, I would be nothing. I still don't know मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं. My brother handles everything. I have no clue about anything. So yeah. एक रील वायरल हो रही है आपकी, जहाँ पे आपने काफ़ी अच्छी बात की. इतना रिलेट करा है मैंने उस रील के साथ. काफ़ी कई आसपास को मैंने शेयर भी करा है कि एक लड़की तारीफ कर देना काफ़ी हो जाता है. हाँ. तो यू नो वो फीमेल फ्रेंडशिप की मैं बात करूँगी. है आपकी लाइफ में कोई फीमेल? बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे. इकरा है मेरी बेस्ट फ्रेंड, रुचा है, एंड शिफाली एक मेरी, अभी उनका नाम शिफाली है, उन्होंने चेंज किया है. वो मेरी काफ़ी पुरानी दोस्त हैं. सना है, नोयना है. सना और नोयना मुझसे उम्र में छोटे हैं. एंड शिफाली समवन जिनके साथ मैं जब जूनियर आर्टिस्ट के तौर पे काम करती थी, हम दोनों को अलादीन शो में साथ में एक काम मिला था. सो मैं उन्हें तब से जानती हूँ. एंड आई रिमेंबर तब उनके कुछ, जब मैं उनकी दोस्त बनी थी, उनके कुछ आई थिंक 25,000 फॉलोअर्स थे. और मैं जब पहली बार, बहुत नई थी इंस्टाग्राम पे, और मैंने देखा था कि 25,000 फॉलोअर है, मैं बौखला गई थी कि मैं इस इंसान के साथ एक घर में रहने वाली हूँ जिसको इतने सारे लोग जानते हैं. एंड शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग पीपल दैट आई हैव नोन. इतनी अमेजिंग हैं, इतनी यू नो, जब हम साथ भी रहते थे, और मैं ऑफ कोर्स आई वाज यंगर, आई वाज आई थिंक 17 व्हेन आई शिफ्टेड विद हर. हम पीजी में साथ रहते थे, एंड हमने काफ़ी टाइम के साथ में बिताया है. आई वुड बी सो इंस्पायर्ड बाय हर, क्योंकि वो यू नो रोज़ उठती थी, रोज़ ऑडिशंस देती थी, एंड व्हाटएवर वेरेवर शी विल बी देयर. कोई भी काम है, कैसा भी काम है, इतनी हाइजीनिक, नीट और क्लीन थी. और मैं, मेरे कपड़े यहाँ फेंके होते थे, वहाँ फेंके होते थे, और इतनी अंडरस्टैंडिंग थी, और है अभी भी. शी इज़ सच अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन टिल डेट, कि कभी भी हम दोनों कुछ भी अचीव कर रहे होते हैं ज़िंदगी में, एक अप्रिसिएशन होता है एक दूसरे के लिए. तो वो प्यार हमेशा रहा है. एक रहे समवन, शी इज़ लाइक, शी इज़ आई थिंक द बेस्ट लिसनर आई हैव इन माई लाइफ. कि मुझे कोई भी दिक्कत होती है, मैं उन्हें कॉल कर सकती हूँ, बता सकती हूँ. शी इज़ सो सेंसिबल, शी इज़ इंटेलेक्चुअल, शी इज़ सो स्मार्ट. मतलब बहुत ही यू नो, आपको बहुत ही इंस्पिरेशनल लगता है कि यू नो दिस, शी इज़ सो लाइक, मैं स्मार्ट पे स्ट्रेस कर रही हूँ बार बार, बिकॉज शी इज़ सो स्मार्ट. लाइक स्ट्रीट स्मार्ट? she's not street smart, like also street smart, also very intellectual, and you can talk to her about anything, any topic in this world. I love how you're adoring your friends. Yeah, it could be nice. Geography, it could be history of a country, it could be science, it could be about
softwares. You can talk to her about everything and anything. Wow. And the way she talks also, you'll be amazed कि ऐसा लगेगा ये घर से रट्टा करके आई है. So yeah, Noinu and Sana, they're like, Sana is someone जिसके साथ मैं I think she was 11-12 when I met her. She's a child and now she's I think 18 years old. I hate to say that because बड़ी हो गई, अजीब सा लगता है, but yeah, Noinu is I think 18. Both of them are 18. Rucha is another friend of mine. So yeah, I have really good female friends of the industry and in the industry also. Isha is one of my good friends, I would say, from the industry. That I saw your reels and all video and all. Yeah. बहुत viral होता है. Yeah. But you know, आपके पूरे सेंटेंस से फीमेल फ्रेंडशिप से इतना तो पता चल गया, you love them a lot. I love them. You adore them a lot. हद से ज़्यादा, क्योंकि वो हैं वैसे. The way you are describing each and everyone is amazing, amazing. Lucky to have you, you know. I'm genuinely telling you, if you meet them, you will feel I am lucky to have them. क्योंकि Wow. it's genuinely बहुत amazing लोग हैं. Genuinely बहुत कम अच्छे लोग मिलते हैं आपको, और जब मिलते हैं मुझे ऐसा लगता है उनको पकड़ के रखना चाहिए, जाने नहीं देना चाहिए, तो मैं उन्हें पकड़ के रखती हूँ और जाने नहीं देती हूँ. I forgot to add पलकू. अगर ये वीडियो कहीं भी गई और पलकू ने नहीं देखा, पलक नाम है उनका, वो मेरा बट वेल नहीं करेगी, बहुत ही प्यारी लड़की है. So yeah, Palak also. I was seeing one of the video. I know because you're very loyal to your friends in industry, both the ways. I remember seeing Ankita's video where she was talking about you उनके blog में, जहाँ पे उसने बोला था कि विकी को कुछ हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था उनका शायद, तो you are the only one who came in the hospital, और उस वक्त कोई नहीं आया था. You were the first one who came and शायद आपके बिजी शेड्यूल्स में उसके बाद शायद आप पार्टी वार्टीज में नहीं गए, तो ये दर्शाता है इससे कि हार्ड टाइम्स में you were there, है ना. भले आप बिजी शेड्यूल्स में ना रहे, which is very important. How is that bond right now? Ankita ji, I don't know, I don't think so I've spoken or a lot of people know about this, but especially her, I would say I wouldn't call her my friend. I've told this to her also. उनका दर्जा मेरी ज़िंदगी में थोड़ा ऊपर है. दोस्त का दर्जा एक होता है कि चलो आप साथ में घूम फिर रहे हैं. I think I really look up to her, and you know, she's in both of them, Ankita ji and Vicky bhaiya, in fact, are such beautiful people, and they have such beautiful hearts. And Ankita ji has been in my life at a point where I think I needed someone the most. So वो मैंने उन्हें भी कहा है कि मैं वो चीज़ कभी ज़िंदगी में नहीं भूलूंगी, and I have so much love for her and respect for her. And You got emotional. I think you need a tissue. Sorry. Tissue हुआ यहाँ पे. मैं ऐसे बहुत ही दूर रहना चाहती हूँ रोने धोने से, but yeah, she has been in my life at a point where I needed someone the most, and knowingly, unknowingly, she was there, and I will always be grateful for that. मैंने उन्हें हमेशा कहा है कि आपको एक आँच आएगी अंकिता जी, I don't know about the world, I'll be always there. So yeah, as I promised, I'll always be there. Same love she If also you're shares. watching this, Ankita ji, I love you. Same love she also shares with you. Yeah, I'm sure she loves me. Please. Yeah, she loves you. तभी तो उन्होंने इतना प्यार से आपके लिए, मैं ब्लॉग देख रही थी तो मुझे अभी अचानक से याद आया, you know, when I was talking to you about friendship, so I thought to talk to you. Was there a specific moment in your life that you consider as a breakthrough moment? Career-wise? Yeah. यार I don't know if मेरा breakthrough अभी तक हुआ है. मुझे ऐसा लगता है कि there's a difference between being famous and being famous for your craft. Correct. I think I've been famous. I've been known by people, touch wood, but for my craft yet, I feel no. I think Rafu I would give credit. I was waiting for it. क्योंकि as an actor लोगों ने मुझे I think उसी show से पहचाना. I think not a lot of people know I've done Balveer also. Yes. So but yeah, Rafu is Rafu ना घर पे पहुंचा. Yes. So you know, getting that कि जैसे हम dramas देखते हैं. मुझे और करना है. Is my problem. मैं ना satisfy नहीं होती हूँ. You will get it. You'll get it. You have a, you know, बहुत अच्छा talent है. You have a good face. You have everything good talent. सबसे best thing तो वो है. And Rafu ना दिल को छू गई है. Legit बहुत. दिल को Rafu कर ले, इसलिए नाम रखा था हमने. And hats off to Shravan and Ravi.
for making such content. Yeah. मैं मिली थी उनसे, उनको भी मैंने यही बोला था, we love your content like anything. So yeah, even they were like कि हमारे पास talents भी अच्छे हैं. They were even praising about you, about Gahar, Isha, सबके बारे में. Lovely work. We'll go to our next segment and then we'll wrap it up. Done. ठीक है. The segment is very easy. Some of your good moments I have captured on my phone. उसमें आपको बताना है कि what was the moment, what you were doing, क्या क्या चल रहा था चीजें उस वक्त. Oh, okay. This is from Jaat ka set. I think it was my first or second day on set. हाथ में लगी थी. हाँ, अरे मेरे पास वो वीडियो है, अगर आप देखेंगे देखा है हमारा एक्सीडेंट हुआ है एक्चुअली शूट के दौरान. हम आई थिंक 3 लड़कियां थी पीछे जीप पे. सनी सर गाड़ी चला रहे थे. 3 पीछे थी, 3 बीच में थी और सयामी आगे थी. एंड इट वाज अ हिली थिंग. वो एक एक्शन सीक्वेंस है फिल्म में, जब आप देखेंगे तो कम से कम आई थिंक 12 से 14 दिन हम चिराला एक जगह है वहाँ पे थे जब हम वो एक्शन का शूट कर रहे थे. एंड हमारे पास कोई स्टंट डबल नहीं था, तो हमें खुद वो रॉड पकड़ के, और 1-2 दिन लगा हमें समझने में कि कैसे, बट वो रॉड, वो इतना हिली एरिया है ना कि आप मतलब वो हाथ छिल जाते थे आप वो करते करते, गिरने का इतना डर. एंड आई थिंक सेकेंड लास्ट डे पे बहुत ही मतलब इट वाज रियली बैड. एक लड़की पूरा वो गिर के सनी सर तक पहुंच गई. दूसरी लड़की वो बेचारी इतनी हल्की सी रहती, वो स्टंट डबल थी क्योंकि उसके पहले जो लड़की थी वो पहले ही उसे चोट लग चुकी थी और मैं ही बची थी. और मैं ऐसे एक पैर से खुद को संभाल रही हूँ और एक पैर से, मेरे पास वो वीडियो अगर आप देखेंगे इट इज रियली स्कैरी. एंड वो लड़की सुन के स्कैरी लग रहा है. वो लड़की वहाँ गिर के, शी वाज सो हैप्पी टू सी सनी सर सो क्लोजली. शी इज लाइक, हाय सनी सर, 2.5 किलो का हाथ. I'm like, क्या कर रही है लड़की. हम सब इतने टेंशन में थे. उसका आई थिंक कमर या हाथ कुछ फ्रैक्चर भी हो गया उसके बाद. इट वाज सच अ स्कैरी दिस थिंग, बट या बहुत दर्दनाक था. जो हमें बहुत स्मूथ लगता है स्क्रीन में, एक्टर्स को इट वाज वेरी बैड. मेरे हाथ छिले हुए थे, मेरी कमर में इतना दर्द था. इतनी बार गिरे हम, इतनी बार लोग गिरते गिरते बचे हैं. मतलब यू लव द एक्सपीरियंस. बहुत ही भयंकर एक्सपीरियंस था. दिस It was with Sunny sir. I think on the last day of shoot. I was so happy. हमारा बढ़िया सा एक सीन था, वो सब हुआ एंड देन अलविदा करने का टाइम था. एंड सनी सर इज सो स्वीट, सो स्वीट. बहुत अच्छा. मतलब यू नो आप एक्सपेक्ट करते हो कि इतना बड़ा स्टार है, शायद यू नेवर नो कि वो कैसे होंगे सेट पे, बट ही इज सो स्वीट एंड very emotional also. He is such innocence in his eyes. और बहुत ही बढ़िया इंसान है. बहुत ही मजा आया उनके साथ काम करते हुए. ओह, दिस इज 2 days बैक. हम एक फिल्म देखने जाने वाले थे. उससे पहले मंजोत का काफी टाइम से पेंडिंग था भाप रे भाप पे आना. पारू पहले आ चुकी है एंड सो बोथ ऑफ देम वांटेड टू कम एंड दे हैड कम टू भाप रे भाप एंड वी हैड अ लॉट ऑफ फन. बहुत मस्ती की हमने. मैं मंजोत को बहुत तंग करती हूँ, ऐसा सब कहते हैं, तो बस बहुत मस्ती. ये तो ठीक है, बट भाप रे भाप कैसे आया? मतलब एक्टिंग, परफॉर्मिंग, थिएटर सब कुछ कर रही है लड़की, फिर उसके बाद बिजनेस. देखो मुझे ऐसा लगता है कि 2 चीज़ें हैं. एक तो आपको नहीं पता कि आपको कब तक काम मिलता रहेगा, तो यू नीड बैकअप प्लान. एंड स्पेशली फूड बिजनेस इज समथिंग जो मुझे आई थिंक बहुत छोटी उम्र से करना था. आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग इन फूड बिजनेस. आई एम सो ग्लैड आई had the opportunity कि you know we have another partner, we have 3 partners. So जो हमारे तीसरे पार्टनर हैं वो मेरा भाई, तो मिलजुल के ये सब कुछ हुआ और बहुत ज़रूरी था. Amazing, healthy, very healthy. प्लीज जाइए भाभरे भाव से खाना खाइए, बरसोवा में है. Very healthy, मेरा पर्सनल फेवरेट है. ये बताइए आप, ये तो आपने भी देखा होगा, काफी वायरल हो रहा है. क्यों लोग कर रहे हैं इसे वायरल? तो हुआ ये था, मैं एक्चुअली कमेंट भी करने वाली थी, मुझे याद नहीं है कि मैंने किया था कि नहीं. सुशांत सर के साथ ये पिक्चर है, ये आई थिंक स्क्रीनशॉट है ऑफ सम वीडियो. लोग इतने बेवकूफ हैं कि क्या बोला जाए. तो गलत मीनिंग में ले रहे हैं लोग. तो मेरी ना रिंग खो गई थी, आप बता रहे थे. हाँ, और वो रिंग मेरी नहीं थी, किसी और की थी, इसलिए मैं ज्यादा पैनिक हो गई थी. तो मैं मीडिया के पास आ चुकी थी, मैं आके चली गई थी क्योंकि मुझे वो रिंग नहीं मिल रही थी. मैंने ऊपर ढूंढा, तो मैं वापस आई तो सुशांत सर मुझे पूछ रहे थे
एंड ही कॉल्स मी बेटा, तो ही वाज लाइक कि कहाँ मीडिया यहाँ है, आप कहाँ घूम रही हैं? तो मैं उन्हें बता रही थी कि मेरी रिंग चली गई, तो उन्होंने मेरा हाथ होल्ड किया, तो मुझे समझा रहे थे, इसलिए आप मुझे देखेंगे मैं नीचे देख के कर रही हूँ कि सॉरी इस लाइक ठीक है रिंग मिल जाती है, बट पहले आप अपने इंटरव्यू पे ध्यान दो, मीडिया आई हुई है आपके लिए, वो मुझे समझा रहे थे। तो मैं बस समझ जाओ लोग डांट खा रही थी और डांट खाकर जो गलत चीजें लिख रहे हैं। बेवकूफ है लोगों को क्या है। ये ना मुझे इसमें ना आयशा एक अलग आयशा दिखी थी, काफी कॉन्फिडेंट का पता नहीं है, मेरा चेहरा देखिए आलू जैसा जो दिख रहा है, उस दिन मैं इतनी मैं वही उस पे आने वाली थी कि यू वाज एक्सेप्टिंग एवरीथिंग, कुछ भी हो It was आई एम गुड। it was a very bad day for me. मैं सुबह I don't know I don't know how to put it in words. I had gone through a very bad friendship breakdown. I was on my first day periods. 2 or 3 days back I had been diagnosed with PCOS. So I was in my worst form. मेरा चेहरा ब्लोटेड था, मेरी बॉडी ब्लोटेड थी, आई वॉज नॉट हैप्पी। मैं उसके पहले 1 हफ्ते से रो रही थी क्योंकि इतना सब कुछ हो रहा था ज़िंदगी में, एंड बट यू स्टिल हैव टू शो अप, सो आई हैड टू शो अप एंड yeah, this is how I had to show up. When I saw the video I was like, hey, कैसी लग रही हूँ मैं। देखो अपना अपना है। और ये जो पैपराजी ने जो मेरे चेहरे पे से जूम किया था ना, सारा एक्ने दिखाया था, क्या यार मैं भी देखती हूँ मिरर में, नहीं ज़रूरत है इतना क्लोजली दिखाने की। ओह दिस इज ऑन द स्टेज। आई थिंक करण कुछ मस्ती कर रहा होगा, छेड़ रहा होगा, तो चलता रहता है। सो आई थिंक दिस वाज रफू का सम प्रमोशन। या ये हम रीशूट करने गए थे, पता है, हम पूरा पहले शूट करके आ गए, फिर कुछ चीज़ें थी जो शो में चेंज, ये पहले मैंने किसी को बताया नहीं है, जो शो में चेंज करनी थी सरूल मैम को, तो कुछ चीज़ें ऐड करनी थी, कुछ चीज़ें चेंज करनी थी, तो वो करने के लिए हमें वापस जाना था। तो ये आई थिंक किसको के शूट के दौरान ही बीच में ये काम वापस आ गया था, तो वी हैड गॉन, बट ऑफ कोर्स इट्स मी एंड करण, हम तो वी आर लाइक गुड बडीज। तो नेशनल क्यूटी, what is this national cutie Aisha Khan tried wearing? These are all from socials. Really? Yeah. सी पोस्ट मैंने कभी नहीं National देखी। cutie. This we had gone to Dubai Yeah. for किसको का शूट, Yeah. फुर्क के गाने का, एंड पारुल का निशहर का स्टोर है दुबई में, एंड इफ यू सी द स्टोर इट इज सो ब्यूटीफुल, एंड आई टेल दिस टू पारुल all the time. I am so proud of her and I feel so inspired when I look at her, क्योंकि imagine you have a store in Dubai, you have such a big business and you are the face of the business. True. It's an incredible thing to do. So उन्होंने मुझे first time उनके bangs try करवाए थे, and she also told me that she's going to name it Aisha Khan bangs, so she better does it. Aisha loves food. हद से ज़्यादा। This is berry pulao. ये गुजरात से मेरी एक फ्रेंड है, उनकी मॉम लेकर आई थी, एंड आई वाज ऑन डाइट दैट डे, बट मैं यार चीट तो थोड़ा खरीद सकते हैं, तो मैंने वो ढक्कन पे वो पुलाव थोड़ा सा निकाला और मैं गाड़ी में उसी वक्त बैठी। पर्सनल ट्रेनर है, वो देख लीजिए चीट कर रही है ये डाइट नहीं है मेरे पास पर्सनल ट्रेनर, न्यूट्रिशनिस्ट है मेरी, अगर उन्होंने देखा तो वो ब्लॉक कर देंगी मुझे। This is from Smita ma'am's house. Smita ma'am के घर पे गौरी पूजा थी, and Jackie Dada was a part of it. So it's from there. कुछ शेयर किया आपने, कुछ लर्निंग्स करी उनसे? नहीं, मुझे ऐसा लगता है स्पेशली इन सच एनवायरनमेंट्स आई लाइक टू लेट पीपल बी। मतलब मुझे नहीं लगता वो मौके होते हैं जहाँ आप लोगों को जाके वहाँ पे भी बात ही कर रहे हो और अपने ही बारे में बात कर रहे हो और काम के बारे में बात कर रहे हो। इट्स अ फेस्टिवल एंड आई फील सब अपने अपने स्पेस में रहें, खुश हैं। ओके, लास्ट 2 पिक्चर्स। ये अंकिता जी के घर पे है और इशू है, और हमने जाने से पहले ही सोचा था कि हम कोई रील बनाएंगे, और हम ये सब आंटीज मम्मीज सब बैठी हुई थी, और हम ये जाकर उनके बालकनी में रील बना रहे थे बढ़िया सी। Your bond going strong with Isha, na? She's always been a good friend. I think only in the show she was not nice to me. After the show, I think we have shared a good bond. And she has grown so much as a performer, as an artist. She does such amazing jobs. I think I tell her, she's like, किसी भी चीज़ को छो वो सोना हो जाए वैसा है, तो she's amazing. Yeah, the last one.
Is it Sargun ma'am? बाप रे कितना blurry picture है. I love her. I love her. She, again, like I love people. You love dancing also, ना? I love dancing. हद से ज़्यादा. I love people जिनसे मैं inspire हो पाती हूँ. मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है जिनको देख के मुझे ऐसा लगे कि यार मुझे ज़िंदगी में अभी बहुत कुछ करना है. And Sargun ma'am is one of that kind of people. She's an entrepreneur. She's a producer. She's an actor. She's a loving wife. She's an incredible friend. इतनी चीज़ें आपके पास सीखने के लिए ना, तो आप बहुत मतलब I love people that I get inspired from, and she's someone जो she's full of amazing things and talent. So true. But आयशा जाने से पहले एक दो सवाल थे जो आपके उस पे कमेंट से भी आता है. Is Aisha in relationship? No, Aisha is single. What does love mean for you? Oh wow, okay. अभी हाल फिलहाल में मुझसे पूछा गया था, मैं भूल गई मैंने जवाब क्या दिया था. I think love is a. What is love for me? बहुत बड़ी बात हो जाएगी ये कहना, मुझे ऐसा लगता है, बट मैं ये पहले भी कह चुकी हूँ. मुझे ऐसा लगता है जैसा प्यार आपको आपके पेरेंट्स करते हैं ना, आई थिंक उससे ज़्यादा प्योर फॉर्म ऑफ लव होता नहीं है. पर वो वैसा ही प्यार किसी और से एक्सपेक्ट करना भी मुझे लगता है थोड़ा गलत है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो अपने आसपास, इट्स जस्ट नॉट देयर. सो एज मच एज आई फील कि आई वुड लव टू रिसीव लव इन दैट फॉर्म, मुझे ऐसा भी लगता है कि मैं शायद उस फॉर्म में दे नहीं पाऊँ. शायद मैं उतने प्योर फॉर्म में मैं खुद नहीं किसी को प्यार दे पाऊँ एट द मोमेंट. सो इसलिए मैं किसी से मांगती हूँ. जो मैं दे नहीं सकती वो मैं आई डोंट आस्क फॉर इट. But according to you, what's the green flag? What's a green flag? Ideal man में होना चाहिए. यार आजकल मुझे ऐसा लगता है इंसान जिंदा है, ठीक है, थोड़ा सा भी लॉयल है, मुझे लगता है उतना ही काफ़ी है ग्रीन फ्लैग के लिए, क्योंकि बहुत गड़बड़ चल रहा है. आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग में बहुत गड़बड़ हुई है जो ये वाले जोन की निकली थी. So yeah, I think the one thing that I feel is the greenest of greenest flag is someone who considers you, and could be any form of relationship, not just a love relationship or a romantic relationship, could be friendship, could be your parents, could be anyone. I feel anyone who considers you or considers how the action would make you feel is a green flag. Wow, so nice. Your dream collab with any director you want to work with? Imtiaz Ali sir, Sanjay Leela Bhansali sir, wow, so many names. Anurag Basu sir, Anurag Kashyap sir, Zoya Akhtar, so many names. Wow. So many, yes. You've just started. Just So that. you're gonna go a long way. Aditya Dhar, I told him this, I would love to work with him as an actor. This time it was a song. I would love to be a part of his project as an actor. और any dream collab actors? किसी के साथ collab करना चाहते हैं? कोई actors? I think आलिया भट्ट. I think मैं ये पहले भी कह चुकी. जिस दिन मैंने और आलिया भट्ट ने एक स्क्रीन शेयर कर ली, उस दिन मैं गंगा नहा लूँगी. उस दिन मेरा हो गया. I love her as an actor. Yeah. And yeah, so I think her, I think Ranbir Kapoor, both of them are incredible actors. Ranveer Singh, I think there are too many actors that I would love to be in the same. I would also, there's one more actor that I think is absolutely gem of an actor, that's Radhika Apte. I would love to share screen with her. Yeah. Nice. But in coming times, where we gonna see you? 12 दिसंबर को आ रहे हो आप. Yes. किस किस को प्यार करूँ में आते वक्त में और कहाँ देख सकते हैं हम आपको? आप मुझे देख सकते हैं धुरंधर में. I am a part of it. लगी हुई है and I've done a song for them. Yes. So please watch it and see if you like it. I'm going to watch it today. Kiss Kiss Ko, of course, and there's something more special that we are working on. We're going to shoot in December, so hopefully. Wow. Thank you so much, Aisha, Thank for you for your talking time. to me. It was such a lovely You were such a good talking to you. listener. Let me please tell you Thank you so this. much. You were a very good listener. Thank you so much. Means a lot, Aisha. You know, your journey has been a very personal to me because I have been following you since you have arrived here, since you've started your career. So I want to tell you this: you have been doing great. Just keep doing us, keep giving us the good content, and your
looks, your good clothes. We just love it. ठीक है? Thank